Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to take a few more problems from Verma sir's Concepts of Physics chapter Ray Optics. आज की क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं. प्रॉब्लम नंबर 22, 23 and 24. We are going to discuss these problems today, and with this we will be concluding the topic real and apparent depth and height. Clear? Today's problem was very important from both competition point of view as well as from board point of view. Although such problems may not be asked in board exams, but from competition point of view, these problems are very important. With today's problems, we will be wiping out your entire doubts regarding refractive index, Snell's law, real and apparent depth and height. All the doubts will be cleared today by these three problems, because these three are very crucial problems in this very textbook. So I will be discussing these problems in a very detailed fashion. एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आज के इस लेक्चर में. हम प्रॉब्लम नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे और प्रॉब्लम नंबर 24 तक हम आज इसमें डिस्कस करेंगे. द प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, so let us begin. I am dead sure that after watching this video, there will be hardly any doubt in your mind regarding real and apparent depth and height, refractive index, and Snell's law, etc. In short, all your doubts regarding refraction of light at plane surfaces, those will be wiped out today. So let us begin with problem number 22. ठीक, इसमें क्या बोल रहे हैं? Consider the situation shown in the figure. The bottom of the pot is a reflecting mirror. S is a small fish and T is a humanoid. This is S, fish, and this is humanoid T. Bottom जो इसका है, ये कोई pot है, कोई vessel है. It is bottom जो है, जो इसका bottom है, that's a reflecting surface. That's a plane mirror. The bottom of this vessel is a plane mirror. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. T is a humanoid. Refractive index of water is mu. Clear? At what distance from itself will the fish see the images of the eye? Images of the eye. Part first. Part B. At what distance from itself will the eye see the images of the fish? This is a very beautiful problem, and I will be trying my level best to make it clear to you people. I will be trying my level best to make this problem clear and understandable. ठीक? Let me explain the question. After that, we will be trying to get feel of this question. After feeling the question, we will be able to solve it within no time. ठीक? Although I will take a good amount of time to explain this problem, but once explained, you people will be able to solve this problem within minutes. ठीक है? This is a vessel. This one. This is a vessel, and it is filled with water, suppose, up to this height h. At half the depth of this pot, there is a fish. ये एक vessel है. Vessel को h height तक पानी भर दिया गया है. ठीक है? Suppose it is 10 centimeter, 20 centimeter, whatever it is. वेसल में आधे डिस्टेंस तक, हाइट एच तक पानी डाल दिया गया है, और वेसल के बीचों बीच एग्जैक्टली एट द डिस्टेंस ऑफ h/2 फ्रॉम द बॉटम एंड h/2 फ्रॉम वाटर एयर इंटरफेस देयर इज अ फिश. द बॉटम ऑफ दिस पॉट, दैट इज अ रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर. दैट्स अ प्लेन मिरर. व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड, हमें क्या पूछा गया है? इस पॉट में पानी भर दिया गया है हाइट एच तक. ठीक है? हाइट एच के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि पॉट से भी h/2 हाइट पे, और जो इंटरफेस है वाटर एयर इंटरफेस, क्योंकि यहां तो एयर ही है, वाटर एयर इंटरफेस से भी ये फिश जो है, इट इज एग्जैक्टली मिडवे ऑफ दिस हाइट एच. ये बिल्कुल बीचों बीच रखी गई है इस पॉट की. ठीक है? क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि ये मछली जो है, ये इस आंख की इमेज कहां पे देखेगी? एक देखेगी या एक से ज्यादा देखेगी, वो भी हमें लोकेट करनी है. इमेज की पोजीशन क्या हो? पॉट नंबर फर्स्ट में
पार्ट नंबर सेकंड में हमसे पूछा गया है कि जो ये आंख है ये मछली की कितनी इमेजेस देखेगी और कहां पे देखेगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है ये जो मछली है इसको आंख की कितनी इमेजेस दिखाई देंगी और कहां कहां पे दिखाई देंगी। पार्ट सेकंड में हमसे पूछा गया है कि ये जो आंख है, आंख को मछली की इमेज कहां पे दिखाई देगी, कितनी दूर दिखाई देगी इससे मछली की इमेज। ठीक है, सपोज एक मछली यहां पे है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ये थोड़ी ऊपर आएगी, वो पोजीशन हमें बतानी है। फिर दूसरे केस में ये इसकी रिफ्लेक्शन की वजह से इसकी इमेज मिरर में बनेगी, दोनों की हमें पोजीशन निकालनी है। उसी तरह से आंख की एक इमेज थोड़ी पीछे चली जाएगी, मैं भी दिखा रहा हूं रेड डायग्राम से, और दूसरी इमेज जो आंख की है वो मिरर में बनेगी। हमें एग्जैक्टली दिखाना है इस मछली की आंख से ये आंख ह्यूमन आई कितनी दूर है और ह्यूमन आई से मछली की इमेजेस किस किस दूरी पे बनेगी वो हमें निकालना है। मैंने पहले ही बोला है आप लोगों को कि पहले क्वेश्चन का फील दो। वंस यू हैव फेल्ट द क्वेश्चन तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे फील लेने से ही क्वेश्चन फेल्ट मीन्स हाफ द क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, आई विल बी वर्किंग आउट दिस प्रॉब्लम विद टू मेथड्स। मैं दो मेथड यहां पे यूज करूंगा। पहले मैं शिफ्ट का कंसेप्ट यूज करूंगा, उसके बाद रियल एंड अपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट यूज करूंगा। लेट अस सी हाउ। देखो जी, सबसे पहले मैं देखूंगा ये जो आंख है, मछली को ये आंख कहां पे दिखाई देगी, इसकी इमेज कहां कहां पे बनेगी, मैं वो पहले डिस्कस करूंगा। देखो जी, सपोज देयर इज अ रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट यहां से आ गई ऐसे सीधे मछली की आंख में, क्लियर। दूसरी रे सपोज यहां से आ गई ऐसे, यहां पे पानी है, ये एयर से आ रही है ऐसे, तो नेचुरल सी बात है कि ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस, इस तरह से बेंड हो जाएगी, क्लियर। ये रे और ये रे कभी भी मीट नहीं करेंगी बिकॉज दीज आर डाइवर्जिंग। ये डाइवर्ज हो रही है इससे, ये इससे दूर जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर, इस तरह से मैं दिखाऊंगा आपको, मैं इसको थोड़ा प्रोड्यूस करूंगा। आई विल बी ट्राइंग टू प्रोड्यूस दिस थिंग, मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा ऐसे, इसको भी मैं प्रोड्यूस करूंगा। तो जो पहली इमेज है आंख की वो यहां पे बन जाएगी हमारे पास। दिस विल बी द फर्स्ट इमेज ऑफ द आई। फिर से देखो इसको रे डायग्राम को, एक रे ऑफ लाइट आंख से उठी, बिल्कुल अनडिविएटेड चली जाएगी मछली की आंख में, क्लियर, इज इट क्लियर। क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल पे आ रही है विद दिस इंटरफेस, यानी कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इसका 0 डिग्री होगा, अनडिविएटेड जाएगी। दूसरी रे इसकी आंख से उठी, वो इस वाटर सरफेस के साथ टकराई, यहां से बेंड हो गई, बेंड होने के बाद वो इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, जब मैंने इसको प्रोड्यूस किया बैकवर्ड्स तो आंख की फर्स्ट इमेज जो है वो यहां पे बनती, क्लियर। सो मेथड वन, मैं इसको दो मेथड से सॉल्व करूंगा मैं इस प्रॉब्लम को। मेथड फर्स्ट में मैं शिफ्ट का कंसेप्ट यूज करूंगा। सपोज दिस इज पॉइंट पी, क्योंकि ये पहली इमेज बनी है इसको मैं I1 मानता हूं, फर्स्ट इमेज, क्लियर। देखो जी, जब ये मछली इसको देखेगी तो इसको थोड़ा शिफ्ट दिखेगा, ठीक है। मैं फॉर्मूला शिफ्ट वाली, देखो जी, वंस अगेन वन मोर थिंग दैट यू आर गोइंग टू, दैट आई एम गोइंग ट्राइंग टू क्लियर। जो ऑब्जेक्ट है यहां पे वो ये आई है, हियर आई इज द ऑब्जेक्ट and I1 is this image. This is the observer, fish is the observer. ठीक, incident rays are coming from rarer medium and going to denser medium. मैंने थ्योरी में ये क्लियर कर दिया है आप लोगों को। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो उस टाइम जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट यहां पे आएगा TI1, क्योंकि इमेज यहां पे, सॉरी ऑब्जेक्ट यहां पे था, इसकी इमेज थोड़ी पीछे बन गई, सो शिफ्ट विल बी TI1, शिफ्ट इज TI1। जो मैंने इसमें फॉर्मूला दिखाई आप लोगों को, दैट इज T इंटू म्यू माइनस 1। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी नहीं है, you just don't have to cram the formula. You have to remember the formula and check its validity also. In which context is the formula valid? फॉर्मूला किस कंटेक्स्ट में वैलिड है यह भी आप लोगों को देखना है। क्योंकि यहां रेयर से डेंसर में आ रही है रे ऑफ लाइट, तो यह फॉर्मूला लगेगी T इंटू म्यू माइनस 1। आई हैव प्रूव्ड दिस इन माई थ्योरी क्लास, ठीक है। सीधे मैं लिखूंगा शिफ्ट, दैट इज इक्वल, व्हाट इज T,
हाइट फ्रॉम दिस इंटरफेस दैट इज h, या pt में लिखता हूं int, it is mu minus 1 because water is absolute refractive index of water that is given to be mu दे रखा है इसमें, that is equal, what is pt, that is h into mu minus 1. What is this? This is shift, this is shift ti1. अब जो पहली इमेज बनी वो कहां पे बनेगी, मछली की आंख से कितनी दूरी पे बनेगी, वही हमें निकालना है, ठीक है। हम लिखेंगे इस तरह से, डिस्टेंस ऑफ I1 फ्रॉम फिश दैट इज बी इक्वल टू, कितनी दूर बनी है इमेज, दैट इज SI1, क्लियर, SI1 आएगा। SI1 को मैं जब ब्रेक करूंगा, SI1 को, दैट विल बी SP प्लस PT प्लस TI1, clear, that will be equal to, what is SP, that is h by 2 plus what is PT, that is h from figure, plus what is TI1, that is shift TI1, that is h into mu minus 1, that is h times mu minus 1. मैं लिखूंगा जो डिस्टेंस होगी फिश से, दैट इज SI1, वो हो जाएगी हमारे पास बराबर h by 2 प्लस h, ये वाला h प्लस म्यू h प्लस मैं लिखूंगा, सॉरी यहां पे माइनस h आएगा, माइनस टाइम h, दिस h एंड दिस h गेट्स कैंसल्ड, सो वी विल बी लेफ्ट विद h, बाहर आएगा 1 by 2 प्लस म्यू। तो पहली इमेज जो होगी हमारे पास, उसकी जो डिस्टेंस है SI1, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इमेज फ्रॉम दिस फिश, दैट विल बी इक्वल टू h टाइम्स 1 by 2 प्लस म्यू, क्लियर। लेट मी चेक इट्स आंसर, h into mu plus 1 by 2, yes, this is one and the same thing, 1 by 2 plus mu, clear. This was part number first. अब इसमें हमें दूसरे पार्ट में क्या दिखाना है, दूसरे पार्ट में वो भी मैं दिखाऊंगा। अब हमें बताना है इसकी दूसरी इमेज कहां पे बनेगी, वायर विल द सेकंड इमेज बी फॉर्म, क्लियर। अब देखो, क्योंकि दूसरी इमेज जो है वो मिरर में फॉर्म होगी कहीं पे, सबल कुंज मिररसमस, दैट विल बी फॉर्मड समवेयर इन द मिरर, वही मैं देखूंगा मिरर से कितनी दूरी पे बनेगी। इसको मिटा दो, ठीक, इसको भी मिटा, या इसको रखो, इसको मिटा दो, इस वाली रे, एक रे ऑफ लाइट यहां से उठी आंख से, सीधे मिरर के साथ टकराई, इस तरह से सीधे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, क्लियर, इज इट क्लियर। दूसरी इमेज जो है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, या चलो कोई बात नहीं ऐसे ही देखते हैं। दूसरी रे ऑफ लाइट जो यहां से उठी वो रिफ्रैक्ट होकर आ गई इस तरह से, क्योंकि ये मिरर के साथ टकराई, मिरर के साथ टकराने के बाद ये वापस चली जाएगी इस तरह से, रिफ्लेक्ट हो जाएगी न कि रिफ्रैक्ट। और रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं इस तरह से, तो दिस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, क्लियर। अब चक्कर ये है कि ये रे और ये रे कहीं पे मिलेंगी ही नहीं, मुझे देखना है कि इस आई की इमेज जो है वो मिरर में कहां पे बनी। मैं इसको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करता हूं इस तरह से, इसको भी मैं आगे प्रोड्यूस करता हूं। जो मछली की दूसरी इमेज बनेगी, आंख की जो दूसरी इमेज बनेगी ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो यहां पे बनेगी, ठीक है। दिस विल बी द सेकंड इमेज ऑफ द आई, दिस इज I2, क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट। एक रे ऑफ लाइट यहां से उठी, यहां पे रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होने के बाद इस मिरर के साथ टकराई और यहां से वापस चली गई, क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट। अब क्या हुआ, जो ये रे है
ये रे वापस आ गई, इसके साथ मिरर के साथ टकराई और टकराने के बाद सीधे वापस चली गई उसी रास्ते से जिस रास्ते से आ रही थी, बिकॉज इट वॉज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो ये सीधे आ गई यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चली गई। जो पहली दूसरी इमेज बनेगी आंख की वो इस जगह पे बनेगी। क्लियर? अब चूंकि ये प्लेन मिरर है, मिरर को क्या पता है कि ये रे ऑफ लाइट बेंड होके आ रही है, डायरेक्ट हो रही है, क्या आ रही है, कैसे नहीं आ रही है। इसको लगेगा इस मिरर को कि ये जो हमने पहली इमेज बनाई थी, देखो जो यहां पे बनी थी हमारे पास, दिस वॉज फर्स्ट इमेज आई वन। मिरर को लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये यहां से आ रही है। कहने का मतलब यह है कि ये जो I1 है, दिस विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस इमेज। I1 की इमेज यहां पे बनेगी I2, ऐसा मिरर को लगेगा। अब चक्कर यह है, जितनी दूर I1 इस मिरर से होगी उतनी दूर इसकी इमेज भी बनेगी, बिकॉज ये प्लेन मिरर है। सीधे आ जाओ इस पे, हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ I1 फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ I2 फ्रॉम मिरर। जितनी दूर I1 उतनी दूर I2 मिरर से, बिकॉज ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सामने अगर हम 10 सेंटीमीटर उसके आगे बैठेंगे तो 10 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनेगी। वही हाल यहां पे भी है। अब चूंकि यहां पे मिरर है, इसको क्या पता है कि भाई इमेज, ये जो रे ऑफ लाइट है डायरेक्टली आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, कहां से आ रही है, इसको क्या पता है। इसको लगेगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो I1 से आ रही है। I2 पे इसकी इमेज बना देगा, I2 इसकी इमेज बना देगा इस पॉइंट पे। सपोज दिस पॉइंट Q एंड दिस पॉइंट L, सपोज, या पॉइंट I2 ही रखो इसको, कोई बात। ठीक है, हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ I1 जो मिरर से है, व्हाट इज दैट? दैट इज PI1, और लिख दूंगा मैं PI1 इज इक्वल टू PI2। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि ये जो दूसरी इमेज है ये मछली की आंख से कितनी दूर है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस I2 फ्रॉम दिस फिश? क्लियर? पहले मैं मिरर से देखूंगा, जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे मिरर से ये बनेगी दूसरी इमेज। मैं लिखूंगा जो मिरर से इसकी दूरी है I1 की दूरी, व्हाट इज दैट? मिरर से, दैट इज QI1। QI1 दैट मस्ट बी इक्वल टू QI2, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो I1 है, अब इसकी दूरी जो इससे है, बॉटम से, मिरर से जो इसकी दूरी है, दैट इज क्लियरली इक्वल टू QI1। वही मैंने लिखा QI1। चूंकि प्लेन मिरर है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज भी बनेगी, तो मैं लिख रहा हूं इसको QI2। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं। दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज QI1? QI1 मुझे निकालना है, दैट इज QP प्लस QP, दिस इज QP प्लस PT प्लस PT प्लस TI1। ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा। वही QI2 के बराबर भी है, वही बराबर है QI2 के भी। QI2 इज इक्वल टू इतना, QI1 के बदले मैंने वैल्यू डाल दिया। अब यहां पे आ जाओ, व्हाट इज QP? दैट इज H प्लस व्हाट इज PT? दैट इज ऑल्सो H प्लस व्हाट इज TI1? दैट इज शिफ्ट। अभी निकाला था हमने शिफ्ट। शिफ्ट इज इक्वल टू सीधे H टाइम्स न्यू माइनस 1। क्लियर? हम देख रहे हैं वो बराबर आता है हमारे पास H प्लस म्यू H माइनस H एंड H गेट्स कैंसल, दैट इज H प्लस म्यू H। यानी कि ये जो डिस्टेंस हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस है, जो मिरर से ये दूरी है QI2, दैट इज इक्वल टू H प्लस म्यू H। हमें दूरी कहां से निकालनी है? मछली की आंख से कितनी दूर है ये? एक हो गया, वो हम लिखेंगे ऐसे, एक हो गई ये डिस्टेंस QI2 प्लस QS, क्योंकि मछली की आंख से हमें देखनी है इमेज कितनी दूर बनती है। क्लियर? लेट मी चेक इट। ठीक है, हम लिखेंगे यहां पे डिस्टेंस ऑफ I2 फ्रॉम फिश है
क्लियर? दैट विल बी इक्वल, एक ये QI2 प्लस QS। QI2 मैंने अभी निकाला H प्लस म्यू H, प्लस व्हाट इज QS, दिस इज H/2। हम लिखेंगे दैट इज म्यू H प्लस H/2, दैट इज 3H/2। यहां पे H में कॉमन निकालूंगा, दैट इज म्यू प्लस 3/2। जो दूसरी इमेज है वो मछली की आंख से बनेगी एट ए डिस्टेंस ऑफ H टाइम्स म्यू प्लस 3/2। ये दूसरी इमेज हमारे पास बन जाती है। ठीक है, मैं चेक करता हूं आंसर इसका। यस, इट इज H इंटू म्यू प्लस 3/2 फ्रॉम इटसेल्फ, इससे इतनी दूर। ठीक है, बिलो इटसेल्फ। ये वाली इमेज जो है ये इसके नीचे बनेगी, ये वाली इमेज जो है ये इसके ऊपर बन जाएगी। क्लियर? दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ शिफ्ट, यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ शिफ्ट। नाउ आई विल बी वर्किंग आउट दिस ए पार्ट यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ रियल एंड अपरेंट डेप्थ। मैंने पहले ही हेडिंग दी थी मेथड 1, अब मैं हेडिंग दूंगा मेथड 2। मेथड 2 में मैं कांसेप्ट यूज करूंगा रियल और अपरेंट डेप्थ का। क्लियर? डायग्राम यही रहेगी, देखो कैसे करते हैं। पहली इमेज पे आ जाओ, पहली इमेज पे आ जाओ। हमें पता ही है दिस इज मेथड 2, मेथड सेकंड। क्लियर? दिस इज मेथड सेकंड। हमें पता है सबसे पहले मैं देखूंगा मछली की आंख से ये इमेज कितनी दूर बनी, यानी कि सबसे पहले मैं देखूंगा ये डिस्टेंस SI1 कितनी निकलेगी। ठीक है, सीधे मैं लिखूंगा D रियल डिवाइड बाय D अपरेंट, दैट इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव। क्लियर? D रियल कितनी दूर है, ये रियल डेप्थ मुझे नापनी है। हमेशा रियल या अपरेंट डेप्थ हम नापते हैं इससे, व्हाट, जहां पे मीडिया जो इंटरफेस होती है दो मीडिया की। सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां पे। सो रियल डेप्थ विल बी PT, मैं लिखूंगा PT डिवाइड बाय व्हाट इज अपरेंट डेप्थ, दैट इज PI1, जो इस मछली को लगेगा, या जो मैं यहां से नापूंगा इमेज की डिस्टेंस, दैट विल बी अपरेंट डेप्थ, दैट इज PI1। दैट इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव, दैट इज म्यू इंसिडेंट डिवाइड बाय म्यू रिफ्रैक्टेड। म्यू इंसिडेंट यानी कि म्यू एयर डिवाइड बाय म्यू रिफ्रैक्टेड, म्यू वाटर। क्लियर? व्हाट इज PI? Sorry, it is PT. I'm sorry, it is PT. PT is H divided by what is PI1? वो पता नहीं है। That will be equal mu air is 1 and mu water goes, that is mu. So जो PI1 है, जो apparent depth है PI1, that will be equal to mu H. Apparent depth PI1 वो हमारे पास किसके बराबर आएगी? mu H के बराबर। यानी कि जो डिस्टेंस है I1 की फ्रॉम दिस इंटरफेस, फ्रॉम दिस पॉइंट P, दैट इज म्यू H। मुझे निकालना क्या है? मुझे भाई निकालना है इसकी डिस्टेंस कितनी है इस फिश आई से। मैं लिखूंगा सीधे डिस्टेंस ऑफ I1 फ्रॉम फिश, वो हमारे पास बनेगी SI1, दैट इज इक्वल टू SP, ये डिस्टेंस SP प्लस PI1, दैट विल बी इक्वल, व्हाट इज SP? SP दैट इज H/2 प्लस व्हाट इज PI1? अभी हमने निकाला PI1, दैट इज म्यू H। हम लिखेंगे H कॉमन आ जाएगा, दैट इज वंस अगेन इक्वल टू 1/2 प्लस म्यू। चाहे आप उस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो, दोनों में कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। आंसर मस्ट रिमेन सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, मैंने सबसे पहले इसमें दिखा अपरेंट डेप्थ कितनी, यानी कि PI1 मैंने निकाला। क्लियर? फिर बाद में मैंने देखा कि इस मछली की आंख से ये कितनी दूरी पे है, वो मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। अब चलो दूसरे केस में।
जिस तरह पहले केस में था, पहले केस में था, जितनी दूरी इस I1 की होगी इस मिरर से, उतनी दूरी होगी इस I2 की इसी मिरर से, बिकॉज दिस इज अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हम जहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनती है। क्लियर? सो मैं लिख सकता हूं इसमें डिस्टेंस ऑफ I1 फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ I2 फ्रॉम मिरर। दूसरे केस में मुझे देखना है कि जो ये आंख की इमेज बन गई, इसकी इमेज जो यहां पे बनेगी वो मछली से कितनी दूरी पे है वो मुझे निकालना है। यानी कि आई हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस SI2। क्लियर? डिस्टेंस ऑफ I1 फ्रॉम M से कितनी, मिरर से कितनी दूरी पे है ये, QI1। मैं लिखूंगा QI1 इज इक्वल व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ I2 फ्रॉम M। I2 की इमेज जो M से है दैट इज QI2 ही मुझे निकालना है पहले, क्योंकि मैं QI2 को फिर ऐड करूंगा QS, मुझे मछली की आंख से इसकी दूरी निकल आएगी। मैं लिखूंगा QI2 इज इक्वल व्हाट इज QI1, इट इज QI1। क्लियर? QI1 के बदले में पहले लिखूंगा QP प्लस QP प्लस PI1 लिखूंगा मैं, प्लस PI1। क्लियर? मिरर से ये कितनी दूरी पे है, जितनी दूरी पे वो है, वो कितनी दूरी पे है, वो QI1 दूरी पे है, QI1 दूरी पे है, उसी दूरी पे QI2 ये दूसरी इमेज भी होगी, यानी कि QI1 जो है वो QI2 के बराबर होगी। वही मैंने लिखा, मैंने QI2 निकाला, ये पहले लिखा मैंने, QI1 के बदले मैंने लिखा QP प्लस PI1, क्योंकि PI1 मैंने अभी निकाला है। मैं लिखूंगा दैट विल बी इक्वल व्हाट इज QP that is H plus what is PI1 that is mu H। ये क्या निकला? What is this? This distance is the distance of I2 from this mirror। लेकिन मुझे ये डिस्टेंस जो है ये कहां से निकालनी है? I2 की डिस्टेंस मुझे मछली की आंख से निकालनी है। तो मैं सीधे लिख सकता हूं यहां पे डिस्टेंस ऑफ I2 from fish that will be equal to SI2 that will be equal to SQ plus QI2 that will be equal to SQ के बदले H/2 plus what is QI2 अभी मैंने निकाला H plus mu H। क्लियर? that will be equal to mu H plus H/2 plus H that is 3/2H। H कॉमन निकालेंगे हम, यहां पे बचेगा mu plus 3/2, यानी कि जो इसकी इमेज बनेगी I1 की, या जो मछली को दूसरी इमेज दिखेगी वो कहां पे दिखेगी? एट अ डिस्टेंस ऑफ H टाइम्स mu plus 3/2 पे दिखेगी वो, बट बिलो इटसेल्फ। वो मछली को जब नीचे देखेगी मछली तब उसको वो इमेज दिखेगी, जब ऊपर देखेगी वो PI1 और प्लस मैंने H/2 किया था वो उसको ऊपर की तरफ, जब मछली ऊपर की तरफ देखेगी तो वो वाली इमेज दिखेगी, जब मछली नीचे की तरफ देखेगी तो ये वाली इमेज दिखेगी। क्लियर? दिस वाज ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैंने दोनों मेथड से सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने शिफ्ट का कंसेप्ट यूज किया, शिफ्ट के बाद मैंने इसमें क्या किया, रियल और अपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट मैंने यूज किया इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका बी पार्ट है, वो भी दिखाते हैं।
ठीक है जी। दिस द ह्यूमन आई, ये आंख है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ये जो आंख है, मछली को इस आंख की इमेज या इमेजेस कहां पे दिखेंगी, वो हमने पार्ट ए में देखा। पार्ट बी में हमें बताना है कि ये जो मछली है, ये आंख को कहां कहां पे दिखेगी। मछली की इमेज जो बनेगी वो कहां पे बनेगी, कितनी इमेज बनेगी। ठीक है, दिस इज वन साइड इन रिफ्लेक्टिंग मिरर। मैं देखता हूं उसको रे डायग्राम से कोशिश करता हूं, क्योंकि हमें मछली की इमेज चाहिए अभी। ठीक है, सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट आ गई, मछली की आंख से उठी या मछली से उठी डायरेक्ट आंख में। ठीक है, दूसरी इमेज, दूसरी जो ये उठी, जस्ट अ मिनट, दिस इज व्हाट ठीक है, पहली रे ऑफ लाइट जो उठी डायरेक्टली ऐसे उठी सीधे आंख। दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से निकली, डेंसर से आ रही है, रेयरर में जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट दिस। क्लियर? सो दिस रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये रे और ये रे कभी मिलेगी नहीं, लेकिन जब मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा बैकवर्ड्स, इस तरह से, इस तरह से, ये यहां पे मिलेगी। क्लियर? ये रे ऑफ लाइट जो है, ये इस रे ऑफ लाइट को यहां बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे मिलेगी। क्लियर? सो जो पहली इमेज है इस मछली की, so this will be the first image of this fish. ये यहां पे पॉइंट ऐसे, दिस विल बी फर्स्ट इमेज I1. क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, पहली रे ऑफ लाइट यहां से उठी, ये अभी कहीं है ही नहीं, अभी इमेज बनी ही नहीं। पहली रे ऑफ लाइट यहां से उठी सीधे आंख में, दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से निकली, यहां बेंड होकर चली गई, क्योंकि डेंसर से रेयरर की तरफ आ रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वही मैंने दिखाया। इसको जब मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये वाली इमेज। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इस आंख को ये वाली इमेज कितनी दूरी पे दिखेगी, दैट आई हैव टू कैलकुलेट। क्लियर? सबसे पहले शिफ्ट, मेथड 1, शिफ्ट का कंसेप्ट यूज करेंगे। शिफ्ट कितना हुआ है? यहां पे ऑब्जेक्ट यहां पे था, इमेज यहां पे बनी। व्हाट इज शिफ्ट? शिफ्ट इज SI1। क्लियर? शिफ्ट, दैट इज SI1। क्लियर? हम लिखेंगे व्हाट इज SI1, शिफ्ट हम निकाल रहे हैं। इस केस में डेंसर से रेयरर में जा रही है रे ऑफ लाइट, सो फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बोला है कि किस कंटेक्स्ट में फॉर्मूला वैलिड है, यह भी आपको देखना पड़ेगा। सो मैं यहां सीधे लिखता हूं, इट इज T टाइम्स 1 - 1 by म्यू रिलेटिव। डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लिख दिया, यहां पे म्यू रिलेटिव है, वो ऐसे आएगा, फिर म्यू आप लिख दो यहां। ये प्रूव ही किया मैंने। हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू व्हाट इज T, कितनी दूर है यहां से, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब, दैट इज H/2, क्योंकि हमें यहीं तक चलना है जहां पे मछली रखी हुई है, बॉटम पे अभी नहीं जाएंगे, हम इस पॉइंट पे जा रहे हैं। दैट इज H/2 इनटू 1 - 1 by म्यू। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? सो हमारे पास शिफ्ट जो है, यानी कि SI1 हमारे पास आ गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ये, सॉरी ये T है, यहां पे आई को इससे शायद T बोला है, एक मिनट देख ही लेते। हाँ जी, आई को T माना है वर्मा सर ने, तो दिस इज पॉइंट T। मुझे चाहिए डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम दिस आई। मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ I1
फ्रॉम टी या फ्रॉम ह्यूमन आई, फ्रॉम ह्यूमन आई, दैट विल बी इक्वल किसके बराबर आएगा? दैट इज टी आई वन। ठीक है, शिफ्ट मेरे पास एस आई वन पता है, मुझे एस आई वन पता है। ठीक है, हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। एस आई वन मुझे पता है, सो मैं यहां पे लिख ही लेता हूं इसको। दिस इज एस आई वन, क्लियर? मुझे चाहिए टी आई वन। टी कहां पे? टी आई वन मुझे चाहिए डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम दिस ह्यूमन, वही मुझे चाहिए। क्लियर? मैं लिखूंगा टी आई वन इज इक्वल टू, टी आई वन किसके बराबर है? सपोज दिस पॉइंट पी, दैट विल बी इक्वल टू टी पी प्लस पी एस, क्योंकि पी एस मुझे पता है, एस आई वन मुझे पता है। मैं देखता हूं कैसे इसको एक्सप्रेस कर पाता हूं। एक तो टीपी यहां से यहां तक, प्लस मैं लिखता हूं इसको पी एस, क्योंकि पी आई वन मुझे पता नहीं है। क्या ऐसे लिख ही लेते हैं इस स्टेप में पी आई वन, ये पता ही नहीं है, हम ऐसे लिखते हैं इसको टीपी प्लस व्हाट इज पी आई वन? पी आई वन मुझे चाहिए, पी आई वन यानी कि ये छोटी वाली डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू पी एस माइनस एस आई वन। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, छोटी वाली डिस्टेंस। मैंने पूरी डिस्टेंस ले ली पी आई वन, सॉरी मैंने ले ली पी एस पूरी डिस्टेंस, इसमें से मैंने ये वाली डिस्टेंस एस आई वन निकाल दी मैंने, क्योंकि एस आई वन मुझे पता है, अभी निकाला है मैंने वो एस आई वन, दैट आई नो। सो व्हाट विल बी गेटिंग, हम लिखते हैं यहां पे टी आई वन दैट विल बी इक्वल, एक तो टीपी, टीपी इज एच प्लस व्हाट इज पी एस? पी एस दैट इज एच बाई टू, माइनस लिखना है मुझे कितना, करली ब्रैकेट डालता हूं मैं, एच बाई टू माइनस वन, सॉरी एच बाई टू इंटू वन माइनस वन बाई टू। क्लियर? ये यहां पे बंद कर ब्रैकेट। ठीक है, हम लिखेंगे टी आई वन यानी कि डिस्टेंस ऑफ आई वन फ्रॉम दिस ह्यूमन है, दैट विल बी इक्वल एच प्लस एच बाई टू, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और वन के साथ, दिस विल बी माइनस एच बाई टू, इस माइनस से ये प्लस बन जाएगा, सो इट विल बी प्लस एच डिवाइडेड बाई टू म्यू, यहां पे एच डिवाइडेड बाई टू, दैट विल बी इक्वल एच बाई टू गेट्स कैंसल, दैट विल बी एच टाइम्स, एच कॉमन निकालूंगा मैं इसमें, वन प्लस वन बाई टू टी आई वन, यानी कि डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज आई वन फ्रॉम दिस थिंग, फ्रॉम दिस ह्यूमन आई, what will be that? What will be that? That will be h times 1 plus 1 by 2. Clear? Is it clear or not? This must be clear. ठीक? It is h times, मैं आंसर चेक करता हूं इसका, साथ साथ आंसर हम चेक करेंगे। It is h times 1 plus 1 by 2 mu. h times 1 plus 1 by 2 mu. करेक्ट आंसर आ रहा है। अब देखो जी क्या करते हैं, अब हमें दूसरी इमेज निकालनी है, कहां पे बनेगी वो? ठीक, अब हमें निकालना क्या है? दूसरी इमेज हमें निकालनी है, कहां पे बनेगी? क्लियर? देखो जी, मैं फिर रिफ्लेक्शन कंसीडर करूंगा, आई विल बी कंसीडरिंग रिफ्लेक्शन नाउ। प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आपको मुश्किल लग सकती है, इसको 2-4 बार देखना चाहिए। ये पहली इमेज है हमारे पास आई, ठीक है। अब मुझे देखना है जो दूसरी इमेज आई को दिखेगी वो कहां पे बनेगी, इसको भी हटा देता हूं मैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जी क्या होगा, अब रेड यूज करता हूं, यहां से एक रे ऑफ लाइट डायरेक्टली आ गई,
रिफ्लेक्ट होके यहां से आई, रिफ्लेक्ट होके वहीं से चली जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस आंख में चली जाएगी, या कहां चली जाएगी वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट जो है वो यहां से आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां से आएगी, रिफ्लेक्ट होके यहां से चली जाएगी। क्लियर? ये है नॉर्मल यहां पे। जब ये यहां पे आएगी, ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां से चली जाएगी। ठीक है, जब मैं इसको थोड़ा बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करूंगा ऐसे, तो इसकी इमेज कहीं यहीं पे बन जाएगी। एक सेकंड में थोड़ा इसको और टिल्ट करता हूं ताकि क्लियर हो जाएगी। आपको क्लियर होना चाहिए, इस तरह से चलिए, मानो इस तरह से चलिए, और दूसरी इमेज जो है हमारे पास वो यहां पे बन जाएगी। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर? देखो भाई बात क्या है इसमें, अब देखो जी, ये रे ऑफ लाइट जो है, जो बेंड होकर यहां से चली गई, ये इस आंख में घुसेगी। रेज आर पैराक्सियल, यहां पे मैं दिखा नहीं सकता, मुझे फिर इतनी बड़ी आंख दिखानी पड़ेगी, वो मैं दिखा नहीं सकता। ये रे ऑफ लाइट जो है इसी आंख में चली जाएगी, और ये रे ऑफ लाइट जो है इसी आंख में चली जाएगी। क्लियर है? इमेज कहां पे बनेगी? यहां पे। लेकिन किसकी इमेज बनेगी? इसको क्या लगेगा? मिरर को। देखो जी, मिरर को लगेगा कि मैंने ऑब्जेक्टिव यहां पे रखा है, चूंकि दिस इज अ फिश। अगर ये फिश है तो इसकी इमेज यहां पे बनेगी, ये I1 बनेगी यहां पे, ये हमारे पास I2 आ गई। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहां ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो जी, इसको भूल जाओ, इसकी इमेज यहां पे बनेगी। ठीक है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर ये इमेज भी है, जितनी दूर ये फिश है उतनी दूर ये इसकी इमेज आएगी। सपोज दिस इज, देखो जी, ये h/2 दूरी पे है, यहां पे अभी हमने पॉइंट क्यों माना था, ये वाली दूरी जो है यहां से इस मछली की आंख तक, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू h/2, क्योंकि प्लेन मिरर का रूल है, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। ये रे ऑफ लाइट यहां से आ गई, यहां रिफ्लेक्ट होकर चली गई। मिरर को लगेगा कि ये जो इमेज इसने यहां पे बनाई, उसका ऑब्जेक्ट उसने यहां पे रखा है। क्लियर? ये वाली रे ऑफ लाइट जो है इस आंख में घुसेगी इसके साथ। क्लियर? अब हमको वर्कआउट करना है। देखो जी, फिर से इसको एक बार समझो, इसकी इमेज कहां पे बनेगी? यहां पे। क्लियर? लेकिन मिरर को क्या लगेगा? जो ये मिरर है, देखो जी, मिरर जो है, सबसे पहले ये इमेज देखो कैसे बनी। यहां से रे ऑफ लाइट आ गई, यहां से चली गई। ये वाली जो यहां से रे ऑफ लाइट इस मिरर पे आ गई, वो भी उसी डायरेक्शन में वापस रिट्रेस होगी। जब मैंने इस रे ऑफ लाइट जो फिश से इंसिडेंट है, और इस रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर यहां चली गई है, जब मैंने इसको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस किया तो मुझे सबसे पहले I1 यहां पे दिखी। इस मछली की इमेज मुझे यहां पे दिखी। कितनी दूरी पे दिखेगी? एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, जितनी दूरी इस इमेज ऑब्जेक्ट की है, फिश की है, उतनी दूरी पे इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, अब आंख को क्या लगेगा? ठीक है, या सॉरी, इस मिरर को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो यहां पे है उसकी इमेज इसने यहां पे बना दी, वो थोड़ी शिफ्ट हो गई ड्यू टू रिफ्लेक्शन। क्लियर? शिफ्ट यहां पे हो गई वो। ठीक है, इसको लगेगा कि इसी, ये जो ऑब्जेक्ट ये है, पॉइंट इस पे नोट करना, जिसको लगेगा मिरर को कि जो ऑब्जेक्ट ये है उसी की इमेज इसने यहां पे बना दी। ठीक है, मैं फिर से इसको शिफ्ट के मेथड से पहले सॉल्व करूं। मेथड 1, पहला पार्ट मैंने इसमें दिखाया, दूसरा पार्ट है इसका। ठीक है, देखो जी, इस ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ कितनी है? मैं लिखूंगा डी रियल डिवाइड बाय डी अपरेंट इज इक्वल टू म्यू
रिलेट, मैं लिखूंगा म्यू ग्लास या सॉरी म्यू वाटर डिवाइड बाई म्यू एयर, दैट इज इक्वल टू म्यू। क्लियर? अब मुझे देखना है इसकी डेप्थ कितनी है। मैं इस सरफेस से डेप्थ में नाप रहा हूं, यानी कि जो इसकी रियल डेप्थ है दैट इज PI1, PI1 डिवाइड बाई व्हाट इज एपरेंट डेप्थ, मुझे दिखी कहां पे ये I2 पे, सो एपरेंट डेप्थ इज PI2, दैट इज इक्वल टू म्यू। क्लियर? PI1 कितना है मेरे पास, व्हाट इज PI1? PI1 एक तो ये h है और दूसरा है h/2, मैं लिखूंगा इसको PI1 या इस तरह से लिखूंगा मैं PI2 यानी कि एपरेंट डेप्थ, दैट विल बी इक्वल टू PI1 डिवाइड बाय, या ऐसे ऐसे हम, मैं इसको कौन सा, मैं शिफ्ट मेथड में पहले यूज करूं, मैं शिफ्ट करूंगा इसको, मैं शिफ्ट मेथड यूज करूं, सॉरी मैं सीधे लिखूंगा मेथड 1 में शिफ्ट इज इक्वल T टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। क्लियर? दैट इज इक्वल व्हाट इज T? इस केस में ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, एक तो h है, दूसरा h/2 है, दैट इज 3h/2, h प्लस h/2, या इस तरह से लिख दो आप, T जो एक्चुअल थिकनेस है दैट इज PI1 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, दैट इज इक्वल व्हाट इज PI1? दैट इज PI1 दैट इज PQ प्लस QI1, दैट इज व्हाट इज PQ? दैट इज h, व्हाट इज QI1? जितनी दूर फिश उतनी दूर इमेज, दैट इज h/2, दैट इज 3h/2। सो मैं यहां पे लिखूंगा PI के बदले 3h/2 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। व्हाट इज दिस? दिस इज दिस शिफ्ट जो हो गया इमेज में। शिफ्ट का मतलब क्या है? I1 I2, ऑब्जेक्ट यहां पे, इमेज यहां पे, दैट इज I1 I2। क्लियर? मुझे चाहिए क्या है? मुझे चाहिए इस आंख से ये फिश कितनी दूरी पे है, ठीक है, यानी कि मुझे चाहिए SI2, SI2 मुझे चाहिए। SI2 किसके बराबर आएगा? SI2 सॉरी नहीं सॉरी TI2 मुझे चाहिए, आई एम सॉरी, TI2 मुझे चाहिए, TI2 मुझे चाहिए, यानी कि आंख से ये इमेज कितनी दूर है वही मुझे चाहिए, दैट विल बी इक्वल, एक तो ये TP प्लस PI2, PI2 मुझे पता ही नहीं, मैं इस तरह से लिखता हूं इसको, व्हाट इज दिस, मैंने क्या PP लिखा, इट इज PT, TI2 मुझे चाहिए, ये TP या PT, मैंने PT सॉरी इसको TP लिख दो, TP यहां से यहां तक प्लस PI2। क्लियर? मैं लिखता हूं इसको TP, व्हाट इज TP? दैट इज H प्लस व्हाट इज PI2? PI2 क्या है? दैट इज PQ, या इस तरह से, व्हाट इज दैट? दैट इज PI1, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे पता है, PI1 तक डिस्टेंस मुझे पता है, इसको मैं माइनस करूंगा I1 I2 अभी मैंने शिफ्ट निकाला, PI1 भी मुझे पता है, यहां तक H, यहां तक h/2 3h/2, मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, इट इज H प्लस व्हाट इज PI1? PI1 दैट इज 3/2H माइनस व्हाट इज I1 I2? I1 I2 फिर से मैं बड़ा ब्रैकेट दूंगा, इसमें कर्ली ब्रैकेट, इट इज 3h/2 माइनस 3h/2, या इस तरह से लिखूंगा 1 माइनस 1 बाई म्यू, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, ये क्लियर है? मुझे TI2 चाहिए, TI2 मुझे चाहिए, मुझे पता है TI1 सॉरी TI2 मुझे क्या चाहिए, TI2 मुझे चाहिए, जो TI2 है वो मेरे पास है बराबर एक TP प्लस PI2, TP प्लस PI2, TP मुझे पता है H के बराबर, वो मैंने डाल दिया, व्हाट इज PI2? PI2 कितना है वो मुझे पता है, PI1 में से अगर मैं I1 I2 निकालूंगा तो ये PI2 मेरे पास आ जाएगा, वही मुझे चाहिए, वही मैंने किया, I1 I2 का वैल्यू मैंने यहां पे डाल दिया, ब्रैकेट में मैंने लगा दिया, क्योंकि इसको नेगेटिव साइन बाहर है, नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई करना है, 3h/2 से भी मल्टीप्लाई करना है। चलो आगे, दैट इज TI2, डिस्टेंस ऑफ I2 फ्रॉम दिस I, दैट विल बी इक्वल H प्लस 3h/2
माइनस माइनस से 3h/2 माइनस से फिर 1 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा -3h/2 माइनस माइनस प्लस 3h/2 म्यू 3h/2 कैंसल। यहां हमारे पास आएगा h बाहर निकालूंगा मैं 1 + 3/2 म्यू दिस विल बी Ti2 यानी कि डिस्टेंस ऑफ सेकंड इमेज फ्रॉम दिस I1 दैट विल बी इक्वल टू h टाइम्स 1 + 3/2 म्यू। मैं आंसर चेक करता हूं। मैं अभी शिफ्ट यूज कर रहा हूं h × 1 + 3/2 यस इट इज करेक्ट। ठीक है जी, ठीक है सर। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें सेकंड मेथड जहां पर रियल और अपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट चलेगा दैट आई हैव लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू पीपल। वो आप घर में खुद ही देख लो कैसे करेंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट में ये इमेज बनानी पहली मुश्किल थी क्योंकि मिरर को लगेगा यहां से इसकी इमेज जो है इसकी इमेज फर्स्ट इमेज यहां पे बनेगी। ठीक है, आंख को लगेगा कि यहां पे थी यहां पे शिफ्ट हो गई ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट जो है ये आंख में घुसी। क्लियर। जो इसमें दूसरा मेथड है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रियल एंड अपरेंट डेप्थ दैट हैज बीन लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू पीपल। रियल एंड डेप्थ का कंसेप्ट यूज करके मछली आंख को जो मछली की इमेजेस दिखेंगी वो कहां पे दिखेंगी। यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ रियल एंड अपरेंट डेप्थ। आई हैव यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ शिफ्ट। आपको रियल एंड अपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट यूज करके वो चीज निकालनी, वो आप घर में देखो और अपने फ्रेंड्स वगैरह साथ उसको डिस्कस करो, इसको सॉल्व करो। अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's ask a question. A small object is placed at the center of the bottom of a cylindrical vessel of radius 3 cm and height 4 cm. This is a cylindrical vessel. A small object is placed at the center of the bottom of a cylindrical vessel of radius 3 cm. हाइट भी दे रखी है इसकी, दैट इज 4 cm. कंसिडर द रे। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, this object. Consider the ray leaving the vessel through the corner. Suppose this ray and the ray along the axis of the vessel are used to trace the image. Find the apparent depth of the image and the ratio of real depth to apparent depth under the assumption is taken. The refractive index of water is 1.33. Consider the ray leaving the vessel along the. Consider the ray leaving the vessel through a corner. Suppose this ray along the vessel, along the axis of the vessel, are used to trace the image. Find the apparent depth of the image and the ratio of real depth to apparent depth. देखो जी इसमें क्या बात है। दिस इज सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, ये इसकी बेस है, इसका टॉप है, इसके सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है। और क्या दे रखा है इसमें? कंसिडर द वेसल रे लीविंग द वेसल थ्रू द कॉर्नर। यही चक्कर है मुझे। हमें क्या करना है? हमें इस ऑब्जेक्ट की जो मैं पहले क्वेश्चन ही देख रहा हूं पूरा। कंसिडर रे इतना फाइंड द अपरेंट डेप्थ एंड ऑफ द इमेज एंड द रेशियो ऑफ रियल टू अपरेंट डेप्थ अंडर द assumption टेकन। ठीक है, कंसिडर रे लीविंग द वेसल थ्रू द कॉर्नर। हमें इसमें पैराक्सियल केस नहीं देखना है, हमें एक रे कंसिडर करनी है जो कॉर्नर से निकलेगी यहां से। ठीक है, ये यहां से, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये यहां पे ऑब्जेक्ट, रे ऑफ लाइट यहां से निकली,
दूसरी रे ऑफ लाइट जो है वो सीधे यहां से निकली परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। अब चक्कर यहां पे देखो क्या है, सपोज दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल ही है और क्या है, ठीक है। हम लोग अभी तक पैराएक्सल रेज को यूज करते थे इमेज ट्रेसिंग के लिए, इस केस में हमें पैराएक्सल रेज का कंसेप्ट यूज नहीं करना है। इसमें इन दो जो ये रेज ऑफ लाइट है उनकी दूरी जो है दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर, वो 3 सेंटीमीटर यानी कि इतनी दूरी है लगभग। द रेज आर नॉट पैराएक्सल। हमें देखना है कि इसकी इमेज जो है वो कहां पे बनेगी। हमें रियल और एपरेंट डेप्थ निकालनी है और उनका रेशियो निकालना है। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दिस रे ऑफ लाइट यहां से उठी यहां पर पहुंची, दिस इज द सेंट्रल लाइन, ठीक है। ये डेंसर मीडियम है, वो रेयर मीडियम है, तो नेचुरल सी बात है ये डेंसर मीडियम से ऐसे चली जाएगी, ठीक है। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसमें दिक्कत कहां पे। अब मैं इसको थोड़ा पीछे प्रोड्यूस करता हूं, सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज इमेज I एंड दिस इज पॉइंट C सपोज, या A मानो इसको, ठीक है जी, क्लियर। दिस इज 3 सेंटीमीटर, इसको मैं पॉइंट क्यों मानता हूं, इसको मैं पॉइंट B मानता हूं, ठीक है। मुझे बताना है इसकी अपरेंट डेप्थ कितनी होगी, यानी कि AB डिस्टेंस मुझे निकालना है। फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द इमेज एंड द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। मुझे अपरेंट डेप्थ चाहिए इसकी। देखो जी, मैंने फिर से बोला कि जो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का हम कंसेप्ट यूज करते हैं, यानी कि म्यू डी रियल या एच रियल या डी रियल बाई डी अपरेंट, उसको हम लिखते हैं म्यू रिलेटिव। बट वो वैलिड कब है, दैट इज वैलिड ओनली फॉर पैराएक्सल केसेस, दैट इज वैलिड ओनली व्हेन द रेज आर पैराएक्सल। सो इस केस में सबसे पहले वही फॉर्मूला फेल हो जाती है, द फॉर्मूला गेट्स फेल, क्लियर। मुझे अपरेंट डेप्थ चाहिए, मुझे ये AI चाहिए, कैसे निकालूं इसको, ठीक है। चलो देखते हैं। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। मैं सबसे पहले देखो जी, ये 3 है, ये 4 है, इसका मतलब है ये जो ये वाला एंगल है, दिस एंगल, दिस इज 37 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस एंगल का साइन जो है PQ डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। साइन इसका आएगा 3/5, दैट मीन इट इज 37 डिग्री। क्योंकि अगर मैं 37 का ट्रायंगल यहां पे बनाऊं, अगर ये 37 है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5। इस केस में भी साइन 37 दैट इज 3/5, दैट मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री। साइन में अगर इस ट्रायंगल में देखूंगा दैट इज 3/5, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स एंगल इज 37 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे मिल गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो ये वाला एंगल है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसको निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? मैं सिनेल्स लॉ यूज करूंगा पॉइंट बी पे, अप्लाइंग सिनेल्स लॉ एट पॉइंट बी। मैं लिखूंगा ये वाटर है, यहां पे दिस इज वाटर, मैं लिखूंगा म्यू वाटर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू म्यू एयर, क्योंकि एयर में जा रही है रे, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज म्यू वाटर, दैट इज गिवन टू बी 1.33। मैं 1.33 के बदले 4/3 लिखूंगा, फिर साइन ऑफ व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज 37 डिग्री इज इक्वल टू म्यू एयर, दैट इज 1 into sin r. It is 4/3. What is sin 37? 3/5. Perpendicular by hypotenuse. That is equal to sin of r. This gets cancelled. Sin r, that is equal to 4/5. यानी कि r angle of refraction, that is sin inverse 4/5. अब इसी ट्रायंगल पे आ जाओ, 37 वाले पे ही। दिस इज 37,
This is 53 and this is 90. This is 3, this is 5 and this is 4. साइन मेरे पास आ गया 4/5, यानी कि दिस एंगल बाय दिस एंगल। अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूं 53 वाले को, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5, दैट मींस साइन 53 आ गया मेरे पास, और इज इक्वल टू 53, यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो मुझे मिल गया। व्हाट डू आई वांट, मुझे चाहिए क्या? मुझे कौन सी चीज चाहिए? मुझे चाहिए इसकी अपरेंट डेप्थ कितनी है। अपरेंट डेप्थ है AI, ठीक है। सो मुझे चाहिए AI विल बी इक्वल, या इस तरह से लिखो, I भी मिल गया, R भी मिल गया मुझे। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर मैं इस लाइन को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस किया, स्ट्रेट में इसको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस किया, दैट मीन्स दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 53। क्लियर? ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब मुझे चाहिए ये साइड AI, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल AB एंड I, इन ट्राइंगल AB एंड I, व्हाट इज साइन 53? That is perpendicular, that is AB divided by hypotenuse, this side. फिर कैसे निकलेगा मुझे? या tan में ले लूंगा, इसमें मैं tan ले लूंगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं है, IB मुझे पता नहीं है, मुझे ये वाला साइड चाहिए, ये वाला मुझे पता है, मैं tan लेता हूं, tan 53, that is equal to, what is tan 53? That is perpendicular by base, that is AB divided by base AI. Clear? Tan 53 इस ट्रायंगल से, that is perpendicular by base, perpendicular is 4 and base is 3, मैं लिखूंगा 4/3 0. What is AB? AB is also equal to 3 divided by, what is AI? That is to be calculated, वही तो apparent depth है, so AI will be equal to 9/4. 9 को 4 से डिवाइड करो, 4 2s are 8, 9 वर्थ आप डेसिमल को तो 0, 4 2s are 8, 9 वर्थ से 4 5, यानी कि AI जो अपरेंट डेप्थ मेरे पास आएगी दैट विल बी 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है। पैराक्सल यहां पे हमने यूज नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में उधर से ही दे रखा था कि पैराक्सल का कांसेप्ट यूज मत करना। क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है जी। इसमें आप अब एक चीज घर में करना, अब चीज कर जो गहरी है, एक चीज आप घर में देखना, आप देख लेना अगर रेज पैरा एक्शियल हैं तो फिर सीधे रियल डेप्थ यानी कि AP डिवाइडेड बाय AI, AP आपको पता है 4 डिवाइडेड बाय AI, ठीक है। वो अब इसमें हमें इसमें और एक चीज हमें निकालना था, इसमें निकालना था रेशियो ऑफ रियल एंड अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ आपके पास है 4 सेंटीमीटर, अपरेंट डेप्थ आपके पास आई 9/4, दैट विल बी 16/9, वो आप सीधे निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आप घर में इसको करना, घर में आप देखना कि अगर ये रेज पैरा एक्शियल हैं तो उस टाइम अपरेंट डेप्थ कितनी आएगी, उस टाइम सीधे आप निकाल सकते हो म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, वो आप घर में आराम से देखना। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 24 है। A cylindrical vessel whose diameter and height both are equal to 3 cm is placed on a horizontal surface and a small particle P is placed in it at a distance of 5 cm from the center. And I is placed at the position such that the edge of the bottom is just visible. The particle P is in the plane of the drawing. Up to what minimum height should the water be poured in the vessel to make the particle P visible? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, a very beautiful question. देखो कैसे करते हैं इसको, ट्राई करते हैं। पेन पे ढूंढे, मार्कर कहाँ रखे मैंने, ठीक है। A cylindrical vessel whose diameter and height both are equal. Dimoshe cylindrical vessel कितना है? It's cylindrical vessel. Dimoshe front में उन्हें मोटा। Both are equal to 30 centimeter. ये पर होता है 30 सेंटीमीटर, एक पर होता है 30 सेंटीमीटर। क्लियर?
is placed on a horizontal surface and a small particle p is placed in at a distance of 5 centimeter from the center. अगर ये 30 to center को या 15 पर कौन जाए? ये को 15. Particle अक्ष थोम देता है. एक देता है. ठीक है सर? ये तो थोम particle. कूता दूर से थोम. This is particle P. Center is center C. Center पर कुता से थोम particle दूर. 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. इसको सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है. दिस इज 5 सेंटीमीटर. एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर, सॉरी जिसका डायमीटर है, हाँ डायमीटर और हाइट दोनों बराबर है. डायमीटर इसका दे रखा है 30 सेंटीमीटर, हाइट भी दे रखी है इसकी 30 सेंटीमीटर. फिर क्या किया है इन्होंने? इस प्लेस 30 बोथ आर इक्वल टू 30 इस प्लेस इन्होंने हॉरिजॉन्टल, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया गया, सपोज टेबल पे. एंड अ स्मॉल पार्टिकल पी इज प्लेस्ड इन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर. ये यहां पे कोई पार्टिकल रखा गया है, इसकी दूरी जो सेंटर से दैट इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है. And eye is placed at a position such that the edge of the bottom is just visible as shown in the figure. यहां पे एक आंख रखी गई है. आंख को क्या दिख रहा है? जस्ट ये एज दिख रहा है उसको, बाकी यहां से कुछ नहीं दिख रहा है उसको, खाली ये एज दिख रहा है उसको. ठीक है. हमें क्या पूछा गया है? जस्ट द पार्टिकल पी इज इन प्लेन ऑफ द ड्राइंग. ये प्लेन ऑफ द ड्राइंग में है पार्टिकल पी. अप टू व्हाट मिनिमम हाइट शुड द वाटर बी पोर्ड इन द वेसल टू मेक द पार्टिकल पी विजिबल. देखो जी, इस आदमी को क्या दिख रहा है? जस्ट एज दिख रहा है इसको. इस लाइन से नीचे नीचे जो भी चीजें हैं वो इस आदमी को नहीं दिख रही. क्लियर? ठीक. अब पूछ क्या रहा है यहां पे? हमारे पास ये साइड जो है ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर. सपोज दिस इज ए बी. ये वाला साइड जो है suppose this is BD या BC. This is also 30 centimeter. Clear? ये सिलेंड्रिकल वेसल है, इसका डायमीटर और हाइट दोनों बराबर है. एक पार्टिकल P को यहां पे रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे. ये आंख जो देख रही है उसको एज ए जो है जस्ट वो दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है उसको जो इस लाइन के नीचे आ रहा है. हमें क्वेश्चन में वर्मा सर पूछ रहे हैं कि भाई मैं इसमें कितना पानी डालूं, कितना पानी मैं इसमें भरूं ताकि ये पॉइंट जो है ये भी इस आंख को दिखना चाहिए. मैं इसमें कितना पानी डालूं ताकि क्या होना चाहिए? जो ये पॉइंट पी है ये इस आदमी को दिखना चाहिए. कैसे हो पाएगा? देखो जी, हमें पता है जब हम पानी डालते हैं इसमें, किसी भी वेसल में जब हम पानी डालते हैं, अगर उसका बॉटम हो या नीचे कोई पॉइंट पी या कोई ऑब्जेक्ट रखा गया तो वो थोड़ा हमें ऊपर दिखता है. यानी कि मुझे इसमें उतना पानी डालना है ताकि ये पॉइंट पी जो है ये इस लाइन पे आना चाहिए, तो तभी उसको दिखेगा, नहीं तो कैसे दिखेगा? ठीक है. सपोज मैं एक रे कंसिडर करता हूं. सपोज ये तो एक लाइन तो सीधी मानता हूं मैं. ठीक है. दूसरी रे में ऐसे कंसिडर करता हूं लाइक दिस. ये यहां पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं इसको रेड से करते हैं. इसको हम रेड से करते हैं. दिस इज द नॉर्मल. मैं मानता हूं कि यहां से हमारे पास रे एक आ गई ऐसे, यहां तक मैंने पानी भरा है. सपोज
मैंने इस हाइट तक पानी भरा, एक्स हाइट तक। सपोज आई हैव फिल्ड वाटर अप टू दिस हाइट एक्स, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट यहां से आ गई, जब रिफ्रैक्ट होएगी तो यहां से चली जाएगी सीधे आंख में। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहां पे बनेगी, ठीक है, या इस लाइन पे बननी चाहिए उसकी इमेज। अगर मैं इसको थोड़ा बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा तो सपोज यहां पे इमेज बन गई, यहां पे मैं मानता हूं इमेज बन गई, लेकिन आंख को तो दिखेगी, आंख को तो दिखेगी वो इमेज अब, ठीक है। एक रे में मानता हूं वो सीधे आ गई, यहां से चली गई अनडिविएटेड, बिल्कुल ही यहां से। दूसरी रे मैंने मानी यहां से आ गई, यहां रिफ्लेक्ट हो गई, इस आंख में घुस गई, ठीक है। जब मैंने इसको प्रोड्यूस किया बैकवर्ड तो इमेज यहां पे बन गई उसको, यानी कि उसको दिखा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। मुझे यही बोलना है कि मैं इस पानी किस हाइट तक भरूं, यानी कि ये एक्स मुझे निकालना है, तभी तो रिफ्रैक्शन की वजह से वो थोड़ा ऊपर आएगा, उसको दिखेगा, ठीक है। कैसे करें इसको? देखो, अगर मैं इसमें ये बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करता हूं ए बी और सपोज दिस पॉइंट इज ये सी पॉइंट है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी भी 30 सेंटीमीटर, बी सी भी 30 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, उसका मतलब है जो ये एंगल है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल बी सी ए, एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी तो बी। क्यों भाई? ये साइड इसके बराबर है, बेस कॉमन है, इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन ए कॉमन बेस, ठीक है। अब देखो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल इसके बराबर है, उसका मतलब है ये एंगल भी 45 होना चाहिए और ये भी 45 होना चाहिए, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूं 45, यानी कि ये ट्रायंगल जो है ए बी सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक एंगल इसमें 90 है, बाकी तो ये दोनों 45 होंगे। क्लियर? अब चलो जी इस पे देखो जी, ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये रेड कलर का जो है ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे मिल गया। अगर ये 45 है तो दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45, ये एंगल आर भी 45, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे पता है 45 डिग्री। क्लियर? अब यहां पे आ जाओ, मैं इसको मानता हूं एल, यहां पे जो ये पॉइंट है इसको मैं एल मानता हूं, छोटा ट्रायंगल जो बन गया यहां पे, इसको मैं मानता हूं पी एल, इसको मैं मानता हूं सपोज के। इन ट्रायंगल, अब मैं इस पे आ जाता हूं, देखो जी, मैं इस पॉइंट के पे जो रिफ्रैक्टेड रे निकली उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे पता है 45 डिग्री, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है छोटा एंगल बन रहा है ये वाला, ये मुझे पता नहीं। देखता हूं मैं इसको कैसे निकालूं। फिर से मैं सिनल्स लॉ यूज करूंगा इस पॉइंट के पे, अप्लाइंग सिनल्स लॉ एट पॉइंट के, सिनल्स लॉ एट पॉइंट के, ठीक है। मैं लिखूंगा यहां से लाइट आ रही है, म्यू वाटर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू म्यू एयर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। म्यू वाटर दे रखा होगा इसमें, सिलिंड्रिकल वेसल इतना is placed at a distance of 5 cm and is इतना particle should be poured into the vessel। लेकिन म्यू वाटर तो इसमें इन्होंने दे ही नहीं रखा है। म्यू वाटर कैसे निकालेंगे फिर? म्यू वाटर मैंने पॉइंट पी पे सिनल्स लॉ मैंने यूज किया है पॉइंट के, मैं लिखूंगा म्यू वाटर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू म्यू एयर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तभी तो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकलेगा। चलो अगर हम डाटा से यूज करेंगे म्यू ये वाटर, वो निकलेगा 4/3 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज म्यू एयर दैट इज 1 into साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज साइन 45। साइन आई विल बी इक्वल
साइन 45 के बदले 1/√2, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो साइन आई इज इक्वल टू 3/4√2। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये x चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए x। ये एंगल, इसका साइन मुझे मिल गया, साइन मिल गया, कॉस निकालना, tan निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, हम ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट इस तरह। व्हाट इज साइन? दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3 एंड दैट इज 4/4√2। यानी कि ये साइड जो निकलेगा, ये निकलेगा 16 2 दैट इज 32, 32 माइनस 9 दैट इज 23, ये साइड निकलेगा √23, ठीक है, क्लियर? ये ट्रायंगल आप ध्यान में ही रखो। अब इसमें चक्कर है कि हमारे पास साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, ठीक है, ये आई है, मैं बोला यू है आई क्यू ट्रायंगल, ये है, मैंने यही आई वाला ट्रायंगल यहां पे ड्रा किया। साइन आई मुझे आ रहा है 3/4√2, यानी कि परपेंडिकुलर इज 3 टाइम्स कुछ ए, ये जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज 4√2a, क्योंकि ये रेशियो है, ए और ए फिर कैंसिल होने चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से मेरे पास ये आ गया √23। अब इस छोटे ट्रायंगल पे चलो, इन ट्रायंगल KPF मुझे ये x चाहिए, ठीक है, x इसकी बेस है, यानी कि मुझे बेस, और ये L जो है, सॉरी PL, ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसको x और 30 में एक्सप्रेस कर सकता हूं। मैं लिखता हूं इस तरह से, tan I इज इक्वल परपेंडिकुलर दैट इज PL डिवाइड बाय बेस। व्हाट इज इट इज बेस? बेस इसकी आ गई L के, दैट इज इक्वल। अब मुझे चाहिए ये छोटा डिस्टेंस PL, मुझे चाहिए छोटा डिस्टेंस कितना? PL, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, दिस डिस्टेंस इज 30 माइनस x, क्योंकि यहां से यहां तक मैंने x माना है, दिस डिस्टेंस इज 30 माइनस x, क्योंकि अभी हमने बोला ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड इस ट्रायंगल में ये बराबर होंगे, यानी कि KM अगर मैं इसको मानता हूं, KM साइड जो है दैट विल बी 30 माइनस x, ठीक है। ये KLBM ये रेक्टेंगल है, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ऑल एंगल्स आर 90, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। उसका मतलब है जो ये साइड बन गया हमारे पास कौन सा है? LB साइड इज 30 माइनस x, LB साइड हमारे पास 30 माइनस x आ गया, ठीक है। LB साइड इज 30 माइनस x। थोड़ा डायग्राम आपको जूम करना फिर घर में। LB डिस्टेंस इज 30 माइनस x, मुझे चाहिए PL डिस्टेंस, PL यहां पे मुझे चाहिए। देखो PL तो AB, मैं अगर लिखूं पूरा AB को अगर मैं पहले माइनस AP करूं, माइनस करूं इसको LB, तो मेरे पास ये छोटा डिस्टेंस PL बन जाता है। PL के बदले में पूरा साइड AB को पहले मैं ये BL काटूंगा, फिर PA काटूंगा, ठीक है। यहां से यहां तक, C से यहां तक जो डिस्टेंस थी दैट वाज 5, तो ये वाली 10 होगी, क्योंकि रेडियस जो है इसका वो 15 सेंटीमीटर है। डिवाइड बाय मैं लिखूंगा LK कहां गया? LK, उसके बदले x है, मैं लिखूंगा tan I इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, दैट इज 3 डिवाइड बाय 4/√2 इज इक्वल टू व्हाट इज AB that is 30 minus what is AP that is minus 10, what is LB के बदले क्या है? LB that is 30 minus x डिवाइडेड बाय मैं लिखता हूं इसको x, ठीक है। मुझे निकालना है ये डिस्टेंस x में पानी कहां तक भरूं ताकि मुझे ये ऑब्जेक्ट उस आंख को भी दिखना चाहिए, ठीक है। चलो देख, अब tan I की वैल्यू यहां से डाल दो, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय व्हाट इज बेस, दैट इज √23, ठीक। 3 डिवाइडेड बाय √23 दैट विल बी इक्वल टू 30 माइनस 10 माइनस 30 प्लस x डिवाइडेड बाय x, 30 gets cancelled,
सो मैं लिखता हूं यहां पे 3/√23 दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 10 डिवाइड बाई x। क्लियर? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैं लिखूंगा 3x इज इक्वल 3x √23 इंटू x, 3x इज इक्वल टू √23 इंटू x माइनस √23 इंटू 10। क्लियर? थोड़ा मैं इसमें अब कैलकुलेटर यूज करूंगा। कैलकुलेटर अब यूज करना पड़ेगा इसमें। मैं यहां पे लिखता हूं 3x माइनस √23x इज इक्वल टू माइनस √23 इंटू 10। 3x minus what is √23? Just a minute. √23 that is 4.8 x is equal to what is √23 multiply by 10, 47.9 यानी कि 48। ठीक, हम लिखेंगे मगर ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी माइनस आ रहा है हमारे पास। हाँ जी, ये आएगा हमारे पास यहां पे 4.8 माइनस 3 दैट इज 1.8। 4. minus 1.8 x is equal to minus 48. Minus minus gets cancelled. X is equal to 48 divided by 1.8. ये 2 के बराबर आएगा, 20 कुछ आएगा ये 48 divided by 1.8 that is 26.6 यानी कि 26.7 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 26.7 सेंटीमीटर तक इसमें पानी भरूं तो इस आंख को ये वाला ऑब्जेक्ट भी दिखेगा इस लाइन पे। ठीक है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको नीट वाला और जेडब्ल्यू वाला, मेंस वाला, एडवांस की बात नहीं होगी, मेंस वाला। इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछेगा? जो आज क्वेश्चन हुए हैं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन से तीनों। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आते हैं तो 2 बार 3 बार देखो, फ्रेंड्स के साथ टीचर्स के साथ डिस्कस करो। अनंतनाग वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमसे भी आप पूछ सकते हो, कहीं पे कोई डाउट हो। 2 चीज मैंने आपको एक्सरसाइज दे रखी है आज। जो पहला क्वेश्चन था उसमें जो लास्ट पार्ट है बी पार्ट, उसको सॉल्व करना विद द कंसेप्ट ऑफ रियल एंड अपरेंट डेप्थ। एक चीज वो, दूसरी भी मैंने कुछ बोल रखी थी आपको, वो भी आप देख लेना। वीडियोस को अच्छी तरह से देखो, लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा फायदा हो सके। हम लोग हफ्ते में जस्ट 2 लेक्चर्स लेते हैं। 2 लेक्चर्स आप आराम से ग्रेस्प कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे मैक्सिमम 2-3 आवर्स पर वीक, लेकिन आपके बहुत सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा इसमें जो रिफ्रैक्शन पे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सब हो चुकी है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पे। अब मैं इसमें से रे ऑप्टिक्स में से लूंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और साइमल्टेनियसली मैं अटैक कर रहा हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी 11th वालों के लिए जो। फिर उसके बाद हम वेव्स वगैरह देखेंगे, वो भी देखेंगे, लाइट वेव्स भी देखेंगे, साउंड वगैरह वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो मेरे ख्याल से आपका होगा दैट विल बी ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि इसके साथ साथ एक लेक्चर एसएचएम पे, एक रे ऑप्टिक्स पे, एक एसएचएम पे, एक रे ऑप्टिक्स पे, इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह आगे। ठीक है, होप यू वुड हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस।